Good morning, students. In the last class, we discussed about the meaning and scope of political geography. In today's class, I will be giving you the brief history of political geography. Political geography, as an independent branch of geography, is relatively a new subject. और इसका जो ओरिजिन है हम फ्रेडरिक रेटचल की पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो पब्लिकेशन हुआ 1897 में, तब से हम इसको एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में स्वीकार करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो थीम्स थे उन पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, या पहले के जो ज्योग्राफर्स थे, स्कॉलर्स थे, उसने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे कोई बात नहीं की है। जो themes of political geography have been dealt with earlier also. They were much before the Frederick Ratzel's. अगर हम देखें एरिस्टोटल को देखें, वो was the period of Aristotle was 383 BC to 322 BC. He was a Greek philosopher and made great contribution in the field of knowledge. ही रोट पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने एक आइडियल स्टेट का मॉडल प्रस्तुत किया। एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श जो राज्य है उसका एक मॉडल प्रस्तुत किया, और उस मॉडल में उन्होंने कहा कि देयर आर टू इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए स्टेट। और जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एरिस्टोटल ने बताए किसी भी राज्य के, वो थे साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द नेचर ऑफ टेरिटरी। तो एरिस्टोटल के अनुसार कोई भी आदर्श राज्य, उसके डेवलपमेंट, उसके ग्रोथ और उसके सस्टेनेंस के लिए किस तरह का है और कैसे वो अपने आप को स्थापित करता है, ये सब चीज़ें दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक तो पॉपुलेशन, कैसी उसकी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, और किस तरह उसके जो टेरिटरी है जिसमें वो राज्य है स्थित है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, कैसी उसकी फिजियोग्राफी है, कैसी उसकी क्लाइमेट है ना। ये सारे के सारे मिलके एक आइडियल स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद एरिस्टोटल के बाद there was another Greek philosopher, Strabo, and the period of Strabo was 63 BC to 24 AD. He talked about the large size states, which was very much different from Aristotle, who was when Aristotle was talking about the conditions of an ideal state, he was concerned with the small size states. But Strabo, when he was talking about the state, he was talking about the large size states, and he pointed out that for the growth and sustenance and for the development of the large size states, we need two important things which are very much essential. One is a strong central government. The central government, there should be a central government, and it should be very strong. All the important powers should be concentrated in the central government, and at the same time there should be only single ruling head of the state. एक मात्र जो रूल करने वाला जो है, उसका हेड है गवर्नमेंट का, वो सिंगल होना चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केंद्रीय सरकार होनी चाहिए। तब जाके एक लार्ज साइज स्टेट फ्लरिश कर सकती है, ग्रो कर सकती है, सस्टेन कर सकती है। इन दोनों ग्रीक फिलोसोफर के बाद हम इस्लामिक वर्ल्ड में देखें तो इब्न खालदून, ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर एंड ही वाज देयर बिटवीन 1342 to 1405 AD, and he wrote extensively on geography, mainly on physical geography, and he wrote his monumental
work was Mukaddima. He wrote Mukaddima, in which he discussed extensively about geographical phenomena, about geography. And in Mukaddima we find something about political geography, where he identified two different of political and economic organization as two distinct stages of the evolution of society. इब्न खालदुन ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स एग्जिस्ट जो कर रहे हैं, वो दो अलग अलग तरह के सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए उसने, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई और उनकी किस तरह वो सस्टेन करते हैं। और साथ में ये भी कहा कि ये जो दो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, इनफैक्ट दे आर नॉट ऑल टुगेदर डिफरेंट, दे आर in fact two distinct stages of the evolution of the society. And these two he named these two stages, or these two different forms of political organizations, as tribe and city. One is the system of the tribes, which is based on clan and kinship, and which is governed by the head of the tribe. And another system is that of a city state, where people live a settled life, and a responsible government runs that political system. So we have to, when he was talking about two different political system, one is tribe and another city, this system was limited to the desert climate where he was living. So he talked about what he talked about was very much existed in the desert conditions at his time. At the same time, he also outlined the life cycle of the states. He talked about the life cycle of states. According to him, the states grows, develops, flourishes, reach to their glory, and finally they comes to an end. So he, like the life cycle of other organisms, he was talking about the life cycle of the states. After that, we are coming directly to the era of modern political geography, which was the period of Frederick Ratzel, and he existed between 1844 to 1904. And because he wrote extensively on political geography, he gave many new concepts to the branch, and he established political geography as a separate branch of study. Therefore, he is regarded as the father of modern political geography, and he wrote a very important book in 1897 named Political Geography. It is important to note that when Frederick Ratzel was writing about political geography, the whole world was busy in discussing the Darwin's theory of origin of species. Darwin's theory of origin of species was very popular at that time. So जो भी स्कॉलर अपनी थ्योरीज, अपनी बातें डिस्कस कर रहा था, रख रहा था, उस पे हम डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के जो सिद्धांत है उसका प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिलता है। उसके प्रभाव से कोई वंचित नहीं रहा, और उसी के प्रभाव में फ्रेडरिक रैटचल ने भी जो थ्योरी पुट फॉरवर्ड की वो है ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, which means the sovereign political entities are like living organisms fixed in space, involved in a constant struggle for larger living space. So
रेटजेल के जो थ्योरी दी है ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी ऑफ ए स्टेट, तो उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कुछ ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से, ऑर्गेनिज्म जिस तरह ग्रो करते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो उसको एक लार्जर स्पेस की ज़रूरत होती है, अपने आसपास और जगह की ज़रूरत होती है, फैलने के लिए, उसके ग्रो करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है और उसको वो ऑक्यूपाई करता है। उसी तरह एक स्टेट जब ग्रो करती है तो वहाँ के पॉपुलेशन बढ़ती है, वहाँ के लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती है, तो वो उसको और ज़्यादा आसपास के स्पेस की ज़रूरत होती है जिसमें वो स्टेट एक्सपेंड करती है। सो दिस इज़ द ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी ऑफ द स्टेट वेयर सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटीज़ को उन्होंने बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर दिया कि जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पेस की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, है ना, उसी तरह सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटीज़ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, बट दे आर फिक्स्ड इन स्पेस, इन्वॉल्व इन ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर लार्जर लिविंग स्पेस। उनके जीवन के लिए या उनके सर्वाइवल के लिए, उनके उसके लिए उसको लार्जर स्पेस की ज़रूरत होती है और वो कॉन्स्टेंटली उसके लिए स्ट्रगल करता रहता है। साथ ही फ्रेडरिक रेटजेल ने एक और कॉन्सेप्ट दिया ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी ऑफ द स्टेट के साथ साथ, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज लेवेंसरम। लेवेंसरम ही एक्सप्लेन इट इज़ द टेरिटरी विच ए ग्रुप, स्टेट और नेशन बिलीव्स इज नीडेड फॉर इट्स नेचुरल डेवलपमेंट। लेवेंसरम इस को इस तरह डिफाइन किया कि लेवेंसरम इज ए टेरिटरी, एक क्षेत्र है जो एक ग्रुप, स्टेट और नेशन ये बिलीव करता है कि उसके ग्रोथ के लिए, उसके सस्टेनेंस के लिए आवश्यक है, तो इसको उन्होंने लेवेंसरम का नाम दिया। साथ ही फ्रेडरिक रेटजेल ने 3 एसेंशियल ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की बात की और ये कहा ही स्ट्रांगली बिलीव्ड these 3 essential geographical facts govern the character and growth of the states. According to Redzel, there are 3 essential geographical facts which govern, वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्टेट का कैरेक्टर क्या होगा और उसका ग्रोथ क्या होगी। और ये जो 3 फैक्टर्स हैं, दे आर दैट ही टोल्ड दैट स्टेट्स आर टेरिटोरियल, दैट देयर शुड बी ए टेरिटरी फॉर द स्टेट्स। स्टेट्स रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल और एक स्टेट ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेट्स ऑलवेज डेवलप विद इन द लिमिट्स ऑफ नेचुरल फ्रेमवर्क। और जो ग्रोथ होती है स्टेट की, वो एक उसका जो नेचुरल फ्रेमवर्क होता है, जो नेचर द्वारा प्रोवाइड की हुई जो सीमाएं होती है, जो फ्रेमवर्क उसको दिया गया होता है, उसी के अंतर्गत उसका विकास होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट फ्रेडरिक रेटजेल indirectly talked about the natural frontiers within which a state grows. I again summarize the contribution of Frederick Redzel. He wrote a very good book, Political Geography, in 1897, and in which he discussed political geography extensively. Therefore, he is known as the father of modern political geography, as well as he also established political geography as a separate branch of geography. फ्रेडरिक रेटजेल की जो भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी संबंधी सिद्धांत हैं, बातें हैं, वो डार्विन की थ्योरी से बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हैं। ये भी हमको ये फैक्ट है और ये मानना होगा कि उन पे डार्विन की थ्योरी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने जो स्टेट को डिस्क्राइब किया उसमें डार्विन की थ्योरी का, या उन्होंने जो डार्विन की थ्योरी में जो बातें कही गई उसको सीधा स्टेट पे अप्लाई किया। और इसको अप्लाई करते हुए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए, एक तो ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड दूसरा लेवेंसरम। साथ ही फ्रेडरिक रेटजेल ने 3 एसेंशियल ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की बात की जो किसी भी स्टेट के कैरेक्टर और ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, एंड दे आर दैट स्टेट्स आर टेरिटोरियल, स्टेट्स रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल, एंड इट स्टेट्स ऑलवेज डेवलप विद इन द limits of natural framework, that is
That's why he talked about the natural frontiers. So the next things I will be discussing in my next lecture. For today it's sufficient. Thank you friends.